الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی بخشش کر دے گا، ہر بندے کی بخشش ممکن ہے، ہر بندہ جنت میں جا سکتا ہے سوائے ایک گناہ کرنے والے کے، سوائے ایک گناہ پہ مرنے والے کے، وہ ہے جس نے شرک کر دیا۔ تو جب رب تعالی نے تمام گناہوں سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ شرک کا گناہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرما وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 انبیاء کا نام لیا، 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد فرمایا کہ یہ 18 انبیاء ہیں، تم تو وہ ہو جو کبھی نماز پڑھتے ہو کبھی نماز نہیں پڑھتے، تم تو وہ ہو کبھی قرآن کھولتے ہو کبھی قرآن نہیں کھولتے، تم تو وہ ہو کبھی گناہ عبادت کرتے ہو تو کبھی گناہوں سے لت پت رہتے ہو، معمول تو تمہارا یہ ہے گناہوں سے لت پت میں رہتے ہو، تو تم ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 18 پیغمبر ہوں، اللہ کے قریب ترین پیغمبر ہوں۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ان سے بالفرض یہ ہو نہیں سکتا، لیکن 18 پیغمبر مل کے بھی مکھی کے پر کے برابر بھی اگر شرک کر دیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی نمازیں روزے ان کی نبوت سب کچھ ہم ضائع کر دیں گے۔ تو جب 18 پیغمبروں کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر 18 پیغمبر یہ کام کریں گے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو اگر آج کا مسلمان یہ کام کرے گا تو پھر سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی کہ اگر اتنے درجے کا ہائی پیمانے کے لوگ ان سے اگر یہ تھوڑا سا ہلکا سا گناہ ہو گیا مکھی کے پر کے برابر تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور عام بندہ اگر کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بخشش ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑے گا، جہنم میں ہی رہے گا، جنت کا منہ تک نہیں دیکھ سکے گا جس سے شرک کیا ہوگا۔ پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو مشہور قصہ کہ ایک شیخ اسی طریقے سے درس دے رہے ہیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سننے والے کیونکہ سننے والے ہمارے لوگوں کی کیا عادت ہے، علمی بات سنیں گے ہی نہیں، وہ کیا سنیں گے کہ کوئی سر لگا کے کوئی قصہ بیان کر رہا ہے، بس واہ جی واہ واہ جی واہ، اس کے بعد کوئی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان کا کیا معمول تھا کہ وہ درس دے رہے ہیں توحید کا، شرک کا، تو شرک سے ڈرا رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ میں درس دے رہا ہوں، قصہ کہانی سناتا ہوں، سب غور سے دیکھتے ہیں، اور جب میں علمی بات اور ایسے خطرناک بیماری کا بتا رہا ہوں کہ اگر 18 پیغمبروں میں سے بھی مل کے بھی وہ مکھی کے پر کے برابر بھی کر دیں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائے، اتنی سخت خطرناک بیماری ہے، اس بیماری کا متعلق بتا رہا ہوں، یہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طریقہ آزمایا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس محلے میں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اس محلے میں ایک انسان نے، ایک مرد نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ کیا کہا کہ آپ کے محلے میں ایک مرد نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، آپ کو پتہ ہے؟ سب لوگ اس طرح دیکھنا شروع کیے، کون ہے یار، کون ہے ہمارے محلے میں، ہم تو اس کو قتل کریں، کچا کھا جائیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے، شیخ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا نکمے نادانو، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں جو ماں کے متعلق ایسا سوچے، لیکن پھر بھی یہ گناہ شرک سے چھوٹا گناہ ہے، یہ گناہ شرک سے چھوٹا گناہ ہے۔ تو آپ زنا کرنے والے کو تو کیسے دیکھتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر اس طریقے کا کوئی ماں کے ساتھ سوچے تو آپ تو اس کو کچا کھا جائیں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے شرک کرنے والا اس سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں نا، ممبروں پہ جب قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، یہی تو شرک ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر کوئی زنا کرے، مسجد کے اندر زنا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو تو وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسجد کے اندر کوئی شرکیہ قصے سنائے، مسجد کے اندر کوئی شرک کرے تو پھر آپ کو بالکل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، مزے لے کے ایسے قصے سنتے ہیں، اور پھر جو ہے خود بھی نعرے لگاتے ہیں ولیوں کی کرامت، سب کچھ ہے، سب کی کرامتیں ہیں، لیکن آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوتا ہے، رب تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ نبی نوح جو ہے ان پہ جب طوفان آتا ہے، نبی نوح اللہ سے مدد مانگتے ہیں، رب تعالیٰ بتاتے ہیں کشتی میں سوار ہے جو نبی
यूनुस जो है मछली के अंदर चले जाते हैं, कौन उनको बचाता है? अल्लाह बचाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम किश्ती में, नबी है, नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई हो नहीं सकता। नबी है, नबी है, नबी है। लेकिन कैसे, जैसे ही सवार हुए किश्ती में, किश्ती वालों ने कहा अब ये किश्ती पे सवार हो चुके हैं। मसला ये हुआ कि रब ताला को नबी यूनुस का ये अमल पसंद नहीं आया। हुआ क्या था, यूनुस अलैहिस्सलाम दर्स देते थे कुरान हदीस की तरह। उस वक्त जो किताब थी, कुरान तो नहीं था, माज़त यानी उस वक्त की जो आसमानी किताब थी तशरीह, उसकी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे। अल्लाह के दीन की तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे हैं। चुनांचे कौम ना मानी, कौम बिगड़ी हुई थी, ना मानी। नबी को गुस्सा आया, नबी निकल गए कि मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारा घर को मैं जा रहा हूँ। चुनांचे आप बाहर निकल गए, आप उस बस्ती से निकल गए, बाहर निकले। पीछे से बस्ती वालों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अब नबी यूनुस गुस्से में थे कि उन्होंने जो है तौबा नहीं की होगी, या वो जो है मेरी बात नहीं सुनते, या वो चल पड़े। अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने मुझसे इजाज़त लेनी थी कि है अल्लाह मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तुमने इजाज़त नहीं दी। काम अच्छा अपनी तरफ से किया, गुनहगार लोगों को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये काम नहीं है कि मेरी इजाज़त के बगैर जाओ, मुझसे पहले इजाज़त लेनी थी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह के तौर पे ये किया कि किश्ती पे सवार हुए। जैसे ही किश्ती पे सवार हुए, किश्ती जो है डोलने लग गई, तूफान आ गया, ऐसे ऐसे होने लग गई, गिरने का खदशा था। सब ने कहा कि अब इस पे वजन ज़्यादा हो गया है, एक को बाहर फेंकेंगे तब जाके किश्ती चलेगी, वरना किश्ती का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगी। सब ने, मल्लाह ने कहा कि अब ऐसा करो, कुरानंदाजी करो, एक बंदे को फेंक देते हैं। चुनांचे कुरानंदाजी करते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है कि इनको किश्ती से बाहर निकालो तो किश्ती चलेगी। अल्लाह ने क्या समझाया कि रब चाहे तो नबी को बाहर निकालो तो किश्ती चलेगी, और नबी को अंदर रखोगे तो रब ना चाहे तो किश्ती तबाह होगी। इससे बड़ी तौहीद किया है, नहीं समझ आ रही। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम कुरानंदाजी हुआ, एक दफ़ा जो है उनका नाम आ गया। लोगों ने कहा ये नेक आदमी लगते हैं, नहीं इनको नहीं जो है बाहर समुद्र में कूदने देना है। चुनांचे दूसरी दफ़ा कुरानंदाजी, तीसरी दफ़ा, बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। रब ताला ये फैसला फरमाते हैं ये नबी भी है, कल को कोई जाहिल ये ना कह दे कि वली अगर किश्ती में बैठा हो किश्ती तबाह नहीं हो सकती। हाँ, वलियों की करामतें ज़रूर है, लेकिन हुक्म खुदाबंदी होता है, वली अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। नबी यूनुस अपनी ताकत से कुछ ना कर सके। चुनांचे रब ताला ने ये फैसला कर दिया नबी यूनुस को किश्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। नबी यूनुस किश्ती से बाहर छलांग लगाते हैं, कूद पड़ते हैं, आगे मछली उनको अपना नवाला बना लेती है, लुकमा बना लेती है। किश्ती के मछली के पेट में 40 दिन गुजार देते हैं। लला बिसफी बत्निही इला यौमि युबअसून, लला बिसफी बत्निही इला यौमि युबअसून। फरमाया कि अगर ये यूनुस है, मेरा नबी है, मेरा वली है, लेकिन इसकी ये करामत नहीं। हम आज तो वली शेर पे, फलां बुजुर्ग शेर पे बैठा करते थे, और जो है वो जहाँ भी जाते थे तो शेर के लिए सवारी मांगते, शेर के लिए अपना शिकार मांगते थे, ये करते थे। तरह तरह के लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। रब ताला ने क्या फैसला किया, 40 दिन वहाँ रहे, और फिर रब ताला ने फरमाया कि अगर नबी यूनुस हमसे मदद ना मांगते तो हम उनको क़यामत तक उस मछली के पेट में रखते। मुझसे मदद वली ना मांगे तो मैं वली की ये हालत करूं कि वो यानी मछली के पेट में रहे। और वली भी कौन, वलियों का सरदार। आजकल के वली तो किसी काम के ही नहीं है, तो वलियों का सरदार। ये है तौहीद, ये है तौहीद। तो इसलिए कहा कि जिस तरीके से, फिर भी मिसाल समझ नहीं आती, तो जिस तरीके से एक इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब एक यानी अच्छा और गैरतमंद इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है, उसमें आसमान, उस पे के ऊपर आसमान टूट जाता है, उसके लिए ज़मीन फट जाती है, जब उसके घर वाली या घर में कोई औरत किसी गैर मर्द की तरफ देखे, गैर मर्द से बातचीत करे। यही है ना गैरतमंद इंसान का ये। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी ये समझा रहे हैं कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आती, अपनी औरत के लिए तो तुम अब शिरक बर्दाश्त नहीं करते, और मेरी ज़ात के साथ चले हो शिरक करने के। अपनी ज़ात के लिए शिरक बर्दाश्त नहीं है कि हमारी औरत किसी गैर मर्द की तरफ नज़र उठा के भी देख ले, हम उसको कत्ल करने पे आ जाते हैं, कीमा बनाने पे आ जाते हैं। रब ताला समझाते हैं कि इतनी भी अकल नहीं आती, अपने साथ शिरक बर्दाश्त नहीं है, और मेरे साथ छोटे छोटे जो है राह चढ़ते कीड़े मकोड़ों को मेरे साथ शरीक बनाते। इसलिए जो है हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। सबसे पहले ये मौजूद स्टार्ट करने से पहले मकसद ये है कि तौहीद को समझना है, शिरक से बचना है। शिरक क्या चीज़ है, शिरक कौन सी बीमारी है, क्यों कहा गया, क्यों इतना डराया गया कि 18 पैगम्बर हो मक्खी के पर के बराबर शिरक करे तो उनका ये हाल हो जाए। और आज हम में से कौन कौन शिरक से बचा हुआ है? हम सब के अंदर कोई ना कोई शिरकिया बात मौजूद है, शिरकिया अमल मौजूद है। ऐसा ना हो कि कल हम जो है जब मरे तो रब ताला को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। फिर फरमाया मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह,
दखल अल जन्ना। तौहीद ऐसी है कि तौहीद पे जो बंदा मर गया ज़रूर बज़रूर जन्नत में चला गया। फिर फरमाया इसी पे बस नहीं, जब्न आदम लो बलग ज़ुनूबुका जब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीका वला उबाली। आदम के बेटे अगर तू मुझसे मांगता रहेगा, रब ताला फरमाते हैं आदम के बेटे अगर तू मुझसे ही मांगता रहेगा, मुझ पे ही उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, तो मैं जितने भी तेरे गुनाह होंगे जब तू मुझसे बख्शिश मांगेगा मुझ पे उम्मीद लगाएगा सारे गुनाह बख्श दूंगा। लो बलगत ज़ुनूबुका अनाना समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीका वला उबाली। फरमाया कि अगर तू तेरे गुनाह आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, इतने गुनाह हो कि आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, फिर भी तू जो है मेरे पास आ गया और मुझसे बख्शिश मांगी तो माफ़ कर दूंगा। मतलब ये कि अगर आपसे शिर्क भी हो गया, फ़ौरन आपने तौबा कर ली है, जब समझ आ गई कि ये शिर्क है, तौबा कर ली, तो उसके बाद आपकी बख्शिश की गई है। तो एक ये ताहिया कर ले, तो इंशाअल्लाह यहाँ जो मसाइल पढ़ेंगे उनमें जो शिरकिया बातें हमारे अंदर होंगी उनसे सच्ची तौबा करेंगे, पक्के कट्टर किस्म के जो है मुवहिद बन जाएंगे, तौहीद परस्त बन जाएंगे, शिर्क की बू से भी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फरमाया कि लो अतैतनी इन्नका लो अतैतनी बिकुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैअन लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा। मेरे बंदे तू अगर पूरी ज़मीन में जितने ज़र्रात हैं ये भर के पूरी ज़मीन भर के गुनाहों के साथ लथपथ होके मेरे सामने आ गया, यानी मरने के बाद अगर तूने दुनिया में इतने गुनाह किए लेकिन तू इस कदर जो है तौहीद परस्त था, तौहीद में तूने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, शिर्क से तू इतनी दूर था, क्योंकि पूरी इंसानियत को पैदा करने का मकसद ही तौहीद था। अल्लाह के नबी ने तौहीद की तरफ बुलाया, नबी नूह ने तौहीद की तरफ बुलाया, नबी आदम ने तौहीद की तरफ बुलाया, हर नबी ने तौहीद की तरफ बुलाया। इस दुनिया का मकसद ही, इस ज़र्रे ज़र्रे का मकसद ही तौहीद है। तो फरमाया अगर तू तौहीद परस्त रहा तो क्या करेंगे, तू मरने के बाद हमारे पास आएगा, तू गुनाहों से लथपथ होगा, पूरी ज़मीन को भर के गुनाह लेके हमारे पास आएगा, हम तेरे नामे आमाल में देखेंगे, जैसे ही हम देखेंगे शिर्क की बू नजर नहीं आएगी तो हम तुम्हें बख्श देंगे। फिर सर बख्शेंगे नहीं, लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, हम कहेंगे इस टोकरी में इतनी बड़ी ज़मीन पूरी भर के इतनी बड़ी टोकरी में गुनाह लेके आया है, लेकिन तूने शिर्क ज़रा भी नहीं किया, शिर्क से की बू से दूर रहा, तू हमें इतना महबूब है कि जितनी बड़ी टोकरी भर के तू गुनाह की लाया है, हम इन गुनाहों से खाली करके हम इससे मग़फ़िरत से बख्शिश से भर के तुझे दे देते हैं। तो कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा सवाब, सिर्फ वजह किया है कि शिर्क से बचना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में मुवहिद परस्त तौहीद परस्त बनने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।